Hello everyone, this is Rachna, Assistant Professor Community Health Nursing in Metro College of Nursing. Today we will discuss about a newly introduced topic in your syllabus of Community Health Nursing as a part of Community Health Officer syllabus, that is roles and responsibilities of mid-level healthcare providers, MLHP, or you can say Community Health Officer, okay, CHO. So, regarding introduction, as a part of Ayushman Bharat Health and Wellness Centers, the community health officers are a new cadre of non-physician health workers. You can call them non-physician health workers also. So, this is the new post introduced after the launch of Ayushman Bharat Health and Wellness Centers. So CHOs will play a critical role in provision of expanded range of essential packages of services as a part of comprehensive primary health care, CPHC जिसको बोला जाता है comprehensive primary health care. तो these CHOs, community health officers, they play a very critical role, very important role, because they provide a wide range of essential packages of services. Okay, they are expected to lead the primary care team at subcenter, health and wellness center, provide clinical management and ambulatory care to the community, and serve as an important coordination link to ensure the continuum of care. They also serve as a coordination link between primary health centers or medical professionals and local community which comes under that particular subcenter. Okay, who is community health officer? CHO कौन होते हैं? Individuals with professional backgrounds such as BSc in community health or a nurse, he or she can be GNM or BSc nursing or post basic BSc nursing, or an Ayurveda practitioner trained and certified through IGNOU or other state public health or medical universities and posted at subcenter health and wellness centers for leading primary health care team. Or you can say they can be graduate nurses, BSc nursing or post basic BSc nursing, who undergone nursing training on Indian Nursing Council Revised Syllabus 2019, INC Revised Syllabus 2019. That is specially for you people. Okay, you are lucky ones. ये जो community health officer का की जो post है, you are eligible for that. You 2019 batch में जो pass out होंगे, वो लोग, वो बच्चे, they are eligible for that, and they have posted at sub-center health and wellness center for leading primary health care team. So this topic is very important for you people, because you are the only batch who is eligible for this post. If state government recruits, then you will be the people who is responsible for this post without any 6 months training. Okay, जो आपके बाद जो batches आएंगे, they will require a 6 month training for applying for this post, community health officer. So सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टीम जो होती है, वहाँ पे जो मैन पावर होती है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 1. देयर विल बी 1 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एट सब सेंटर लेवल एंड 1 or 2 female ANM or multipurpose worker. If there is 1 female ANM or MPW, then there will be 1 more MPW, that is male. Okay, so there can be 2 female ANM or MPW, or there will be 1 female and 1 male MPW or ANM.
Then there will be one ASHA worker for every 1,000 population. This is the manpower. Then objectives of community health officer CHO, these are improve access to healthcare in rural or remote areas for the vulnerable families. जो vulnerable families हैं, poor families हैं, they cannot afford healthcare services, तो उनका जो एक्सेस है वो इम्प्रूव करना है टू हेल्थ केयर इन रूरल और रिमोट एरियाज. देन रिड्यूस OOPE, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बीइंग इनकर्ड बाय फैमिलीज़ ऑन हेल्थ केयर. जो फैमिलीज़ हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की, उनका जो एक्सपेंडिचर है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर से रिड्यूस करना है. उनका जो जितना भी एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ केयर सर्विसेज में ना जाए. ठीक है, तो उनको फ्री एक्सेस देना है हेल्थ केयर सर्विसेज का. उसके बाद है इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एट प्राइमरी केयर लेवल. प्राइमरी केयर लेवल पे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ाना है, लोग उसको यूटिलाइज़ करें प्राइमरी केयर लेवल पे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को. देन रिड्यूस वर्कलोड ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर फैसिलिटीज़. आपने पढ़ाई है रेफरल सर्विसेज में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी केयर फैसिलिटीज़ होती हैं. तो जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर फैसिलिटीज़ हैं उनका वर्कलोड रिड्यूस करना है. लोग प्राइमरी केयर लेवल पे जो है अपनी प्रॉब्लम्स सेटल डाउन कर सकें, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को यूटिलाइज़ कर सकें, ताकि सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े. उसके बाद है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CHO. क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एज CHO विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ केयर और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ फॉर द कम्युनिटी by the virtue of the proximity of health and wellness centers to its catchment population. जितनी भी कम्युनिटी की पॉपुलेशन उसके अंडर आती है सब सेंटर के या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के, तो उन लोगों को के लिए जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ केयर या फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा रिलेटेड टू health care services or health related issues. So CHOs are broadly expected to perform the following 3 functions. broadly जो है ये 3 functions होंगे CHO के. क्या क्या? clinical functions एक तो, then public health functions, then managerial functions. Clinical functions provide outpatient care and management. Then public health functions health promotion, disease prevention or surveillance. देन मैनेजरियल फंक्शंस में आएगा एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. सो एज अ क्लिनिशियन जो है CHO काम करेगा और पब्लिक हेल्थ में एक कोऑर्डिनेशन लिंक का काम करेगा. उसके बाद मैनेजरियल फंक्शंस भी उसके होंगे. तो वन बाय वन हम जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे. क्लिनिकल फंक्शंस में CHO विल प्रोवाइड क्लिनिकल केयर एज स्पेसिफाइड इन द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस for the range of services expected at the health and wellness center. जितनी भी सर्विसेज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे या सब सेंटर पे दी जाती हैं, जितनी रेंज ऑफ सर्विसेज, उनके अकॉर्डिंग जो है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए CHO क्लिनिकल केयर प्रोवाइड करेगा. इसमें आपके क्या क्या चीज़ें आएंगी? फर्स्ट, अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग एंड फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट. Second, undertake referral to enable continuum of care. Then provide follow-up care. Then provide counseling support and facilitate teleconsultation or telemedicine. Okay. Firstly, early detection, screening and first level management. तो उसमें क्या roles and responsibility होंगी? What a CHO will do? He or she will undertake detailed history, physical examination of patients to assess general sign and symptoms for identifying a disease condition. Okay, वो डिटेल हिस्ट्री लेगा या लेगी, फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, ताकि जो जनरल और जनरल साइन एंड सिम्टम्स हैं वो असेस किए जा सकें टू
diagnose the disease or identify a disease condition. Then secondly, identify and provide the first level management or primary level management for all conditions covered under the 12 essential packages of services, health and wellness care services and various national health programs. जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सर्विसेज पे 12 एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो है फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा CHO, उनको आइडेंटिफाई करते हुए, और जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर जो सर्विसेज दी जाती हैं उनकी भी फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट जो है CHO विल प्रोवाइड. देन अंडरटेक रेफरल टू एनेबल कंटिन्यूम ऑफ केयर. कंटिन्यू केयर जो पेशेंट को मिलती रहे, इसके लिए रेफरल सर्विसेज भी वो प्रोवाइड कराएगा. रेफरल सर्विसेज में जो रेफरल मॉडल है दैट विल बी लाइक दिस. he or she will enter patient detail in referral slip और IT एप्लीकेशन. अगर कंप्यूटराइज्ड एंट्री है तो IT एप्लीकेशन में डेटा एंटर करेगा CHO, और अगर रेफरल स्लिप यूज़ होती है दैट पर्टिकुलर सब सेंटर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, तो वो रेफरल स्लिप के अंदर पेशेंट की डिटेल्स फिल करेगा. देन he or she will provide information on most appropriate health facility, जो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट और अकॉर्डिंग टू द हेल्थ प्रॉब्लम एंड टाइम मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वो जो सबसे अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. देन इन्फॉर्मिंग द सर्विस प्रोवाइडर्स एट रेफरल सेंटर, ऑल्सो ही विल इन्फॉर्म द सर्विस प्रोवाइडर्स, और यू कैन से जहाँ जो भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जहाँ रेफ़र कर रहे हैं, जो हेल्थ सेंटर पे या तो PHC पे या CHC पे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जहाँ भी रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उस रेफरल सेंटर के सर्विस प्रोवाइडर्स को इन्फॉर्म करेगा दैट पर्टिकुलर पेशेंट वी आर रेफरिंग फ्रॉम दिस सब सेंटर विद बेसलाइन डेटा. उसके बारे में जो बेसलाइन डिटेल्स हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड करेंगे. देन अरेंजिंग रेफरल ट्रांसपोर्ट, जो पर्टिकुलर पेशेंट है जिसको रेफ़र करना है उसके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करेंगे. देन प्रोवाइड प्री रेफरल स्टेबलाइजेशन इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है उसको पहले स्टेबल करने की पेशेंट को, तो प्री रेफरल करने से पहले जो है उसको स्टेबलाइज़ किया जाएगा. वो काम किसका होगा? CHO का. एग्जाम्पल फॉर एक्टिव रेफरल सपोर्ट्स आर, किस किस को जो है रेफ़र किया जा सकता है, किसको चाहिए एक्टिव रेफरल सपोर्ट. एक तो हाई रिस्क केसेस जो होंगे, ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भी, या कॉम्प्लिकेशंस हो गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या ट्रॉमा हो गया, दैट विल रिक्वायर एक्टिव रेफरल सपोर्ट. देन केसेस स्क्रीन्ड पॉजिटिव फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस और chronic infectious diseases requiring confirmation of diagnosis and initiation of treatment plan. जो भी कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस या chronic infectious diseases के जो स्क्रीनिंग हुई है, वो केसेस जो पॉजिटिव आए हैं उस स्क्रीनिंग में, जिनको कि डायग्नोसिस कंफर्मेशन के लिए डायग्नोसिस कराना पड़ेगा या उनका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो शुरू कराना है, तो उसके लिए जो है वो रेफ़र किए जा सकते हैं. देन केसेस एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर केयर, डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिसिन्स दैट आर नॉट अवेलेबल एट सब सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो ऐसे केसेस जिनको ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या ऐसे डायग्नोस्टिक्स या मेडिसिन्स की ज़रूरत है जो सब सेंटर लेवल पे अवेलेबल नहीं है, तो उन केसेस को भी हम रेफ़र कर देंगे. उसके बाद थर्ड आता है प्रोवाइड फॉलोअप केयर. कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोअप केयर. फॉलोअप कैन ईदर बी फैसिलिटी और होम बेस्ड, या तो वो सब सेंटर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे फॉलोअप होगी या होम बेस्ड फॉलोअप होगी. ऑन द रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन ऑफ द केस, इट विल बी टोटली बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ द पेशेंट और कंडीशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है. की एग्जाम्पल्स,
Individuals such as high-risk pregnant women, postnatal mothers with complications, these are the examples who need follow-up care, who required follow-up care. So individuals such as high-risk pregnant women, postnatal mothers with complication during delivery, low birth weight discharged babies, children suffering from common childhood illness, etc. Individuals suffering from chronic illness, hypertension, diabetes, TB, leprosy, etc. To assess treatment compliance. ट्रीटमेंट कंप्लायंस क्या होता है कि जो आपने मेडिकल एडवाइजेज़ उसे दी हैं, मेडिकल या नर्सिंग एडवाइजेज़ उसे दी हैं, वो उसे ठीक से फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये एक डिग्री होती है असेस करने की कि जो पेशेंट को आपने एडवाइस दी है वो उसे कितनी डिग्री तक फॉलो कर रहा है, किस लेवल तक उसे फॉलो कर रहा है, दैट इज़ ट्रीटमेंट कंप्लायंस। देन रिव्यू ऑफ पैरामीटर्स सच एज ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर, अगर आपने ये पैरामीटर्स को रिव्यू करना है उसके कि उसकी ब्लड शुगर लेवल कितना है, आप ब्लड प्रेशर कितना है, then you can also go for follow-up. Adherence to lifestyle modification, that particular patient or family is adhere to any lifestyle modification that you have advised them before. Then timely detection of complications if any, अगर आपको लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है तो उसको पहले ही रूल आउट कर लेना चाहिए, तो फॉलोअप के लिए आप जा सकते हैं। उसके बाद है प्रोवाइड काउंसलिंग सपोर्ट फॉर द फॉलोइंग। काउंसलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स टू शेयर इंफॉर्मेशन रिलेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। आप काउंसल करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट को या फैमिली को कि किस तरह से आपने डिज़ीज़ मैनेज करना है। एनेबलिंग ट्रीटमेंट कंप्लायंस, कि किस तरह से आपने ट्रीटमेंट जो आपको एडवाइजेस दी जा रही हैं उसको फॉलोअप करना है, ठीक है। उसके बाद है एजुकेट इंडिविजुअल्स। काउंसलिंग में और क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को हेल्थ एजुकेशन देते हैं, फैमिली को हेल्थ एजुकेशन देते हैं ताकि डिज़ीज़ प्रिवेंट कर सकें और हेल्थ को प्रमोट किया जा सके उनकी। तो रूटीन एरियाज़ क्या है काउंसलिंग के, सीएचओ किन किन टॉपिक्स पे काउंसल कर सकता है पेशेंट एंड फैमिलीज़ ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी जो सब सेंटर के अंडर आते हैं। ये मेन टॉपिक्स हैं जैसे कि केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्दी स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी, prevention of reproductive tract infections, RTI and STDs or STIs, sexually transmitted infections, substance abuse, diet, exercise, injury, violence, menstrual hygiene, etc. Lifestyle modification, addressing risk factors and treatment for non-communicable diseases. These are the topics, basic topics on which a community health officer can counsel the patients or particular family in the community of under the sub center. Then facilitate telemedicine. Fifth clinical function is facilitate telemedicine or teleconsultation. CHO will use teleconsultation as a part of clinical functions to क्या करेगा वो टेली मेडिसिन में, क्या टेली कंसल्टेशन किसके साथ करेगा, जो एमओ होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, ठीक है। तो पीएचसी पे जो एमओ होगा या कोई स्पेशलिस्ट है उसके साथ टेली कंसल्टेशन करेगा कि जो ट्रीटमेंट है वो सही है, उस चीज़ को वो सही ट्रीटमेंट दे रहा है उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए। तो फर्स्ट है क्या क्या चीज़, एक तो कंफर्म कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम पीएचसी मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट, स्पेशली यूजफुल ड्यूरिंग द फर्स्ट फॉलोअप विजिट ऑफ द इंडिविजुअल हु हैज़ बीन रिसेंटली इनिशिएटेड ऑन ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक डिजीज़। किसी पेशेंट को अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है और उसका ट्रीटमेंट अभी इनिशिएट हुआ है पीएचसी से, पीएचसी मेडिकल ऑफिसर या किसी स्पेशलिस्ट ने शुरू किया है और उसको किसी फॉलोअप विज़िट की ज़रूरत है, तो बजाय वो पीएचसी जाने के, उस पेशेंट के पीएचसी जाने के, वो सब सेंटर आ सकता है और जो
CHO है, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, वो टेलीफोनिकली कंफर्म कर लेगा इस कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट को। उसकी जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है, प्रेजेंट कंडीशन है, वो उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन वो PHC मेडिकल ऑफिसर को देगा या देगी, और वो इस चीज़ को कंफर्म करेगा दैट द पर्टिकुलर कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ ओके और नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। उसके बाद है सेकंड, सीक क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्रोविज़न ऑफ केयर when the condition is not serious and patient's time can be saved by obtaining treatment decisions from PHC medical officer or specialist। अगर उसको किसी हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए कि भाई कोई मेडिसिन कैसे लेनी है, वो भूल गया है, ठीक है, या कोई भी कि कोई प्रिकॉशंस हैं, ठीक है, या कुछ छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन आ गई, फीवर हो गया, ठीक है, या कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया, तो इससे रिलेटेड चीज़ें अगर कोई क्लैरिफाई करनी है तो वो डायरेक्टली CHO के पास आ सकता है, और CHO टेली कंसल्टेशन कर सकता है PHC मेडिकल ऑफिसर या स्पेशलिस्ट के साथ, ताकि पेशेंट का टाइम सेव किया जा सके, ठीक है। उसके बाद है सीक एडवाइस टू स्टार्ट प्री रेफरल स्टेबलाइजेशन और फर्स्ट एड वेयर टाइमली इंटरवेंशंस आर नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन एडवर्स आउटकम्स। अगर कोई रेफरल सर्विसेज के लिए है, मतलब कोई रेफ़र किया जा रहा है और उसको प्री रेफरल स्टेबलाइजेशन या फर्स्ट एड की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे भी जो है टेली कंसल्टेशन हो सकती है CHO की PHC मेडिकल ऑफिसर के साथ, ताकि वो वहीं पे उसको स्टेबल कर दे या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उसको वहीं पे प्रोवाइड किया जा सके। तो ये एडवाइस लेने के लिए भी वो टेली कंसल्टेशन कर सकता है। उसके बाद है पब्लिक हेल्थ फंक्शंस। पब्लिक हेल्थ फंक्शंस में जो है CHO विल अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ फंक्शंस। कौन कौन सी हैं वो एक्टिविटीज़? एंश्योर कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड डेटा एंड प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, कम्युनिटी लेवल एक्शन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन एंड डिजीज सर्विलेंस। So first one is ensure collection of population based data and planning। जितने भी पर्टिकुलर सब सेंटर के अंडर या पर्टिकुलर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंडर जितने भी पॉपुलेशन है, कितने लोग आते हैं, कितनी पॉपुलेशन कवर कर रही है वो पर्टिकुलर सब सेंटर या पर्टिकुलर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कितने हाउस होल्ड्स आ रहे हैं उसके अंडर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा डेटा उसे इंश्योर करना है कि उसके पास इस चीज़ की लिस्ट हो, ये डेटा उसके पास, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हो कि उसके जो सब सेंटर के अंडर है कितनी पॉपुलेशन है और कितने हाउस होल्ड्स हैं, कितने घर हैं वहाँ पे। इंडिविजुअल्स आर empaneled and database is maintained in digital format of comprehensive primary health care IT application और paper format as required by the state। इसके लिए जो है या तो कंप्यूटराइज्ड अगर एंट्री है, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस मेंटेन किया जाता है डिजिटल फॉर्मेट में, तो वो करना है उसको, ठीक है। या फिर अगर पेपर फॉर्मेट में अगर डेटा मेंटेन किया जाता है, ये सारी चीज़ें स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं। तो जिस हिसाब से स्टेट कहता है कि या तो डिजिटल फॉर्मेट है या फिर पेपर फॉर्मेट है, उस हिसाब से डेटाबेस को मेंटेन किया जाए और उसके लिए उसको इंडिविजुअल एम्पैनल्ड करने हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स उसके लिए होने चाहिए, ठीक है। या तो आशा वर्कर जो हैं वो पेपर वर्क मेंटेन करेंगी, या फिर कोई IT वाला जो पर्टिकुलर पर्सन है जो इस कंप्यूटराइज्ड डेटा को मेंटेन कर सके, वो उसको एम्पैनल करना है। उसके बाद है यूज़ द डेटा फॉर इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट प्लानिंग ऑफ हेल्थ एक्टिविटीज़ अंडर सब सेंटर। जो वो डेटा है जो उसने मेंटेन किया है, उस डेटा को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट प्लानिंग के लिए यूज़ करना है, ताकि सब सेंटर के अंडर जो है हेल्थ एक्टिविटीज़ की जा सकें, ठीक है।
क्योंकि इन चीज़ों में जो आप डेटा मेंटेन करोगे इसमें ये सारा डेटा आएगा। वाइटल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स आएंगे, आपके मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी डेटा, कौन सी डेथ, कितनी डेथ हुई हैं पर्टिकुलर मंथ में या पर्टिकुलर वीक में, कितने बर्थ हुए हैं, कितनी पर्टिकुलर एरिया में न्यूबॉर्न गर्ल्स हैं, सेक्स रेशो क्या है, ठीक है। ये सारे वाइटल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स उसमें आएंगे। तो उस हिसाब से वो सब सेंटर के अंडर हेल्थ एक्टिविटीज़ की इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट प्लानिंग कर सकता है। देन फॉर एग्जांपल डेटा रिलेटेड टू प्रेग्नेंट मदर और चिल्ड्रन अंडर 5 विल बी यूज फॉर माइक्रो प्लानिंग फॉर MCH एक्टिविटीज़। जो अगर पर्टिकुलर सब सेंटर के अंडर जो भी प्रेग्नेंट मदर या अंडर 5 चिल्ड्रन से रिलेटेड डेटा है, दैट will be used for micro planning for maternal and child health care activities. उसके बाद data on population above 30 years of age will be used to plan schedule of non communicable disease screening. 30 years से above जितनी भी population का data है, ठीक है, उनमें अगर non communicable diseases, hypertension मान लीजिए ज़्यादा देखने को मिल रही है पर्टिकुलर एज ग्रुप की, तो आप एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ स्क्रीनिंग शेड्यूल कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। फिर है कम्युनिटी लेवल एक्शन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन। एंगेज विद कम्युनिटी टू एड्रेस सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड प्रमोट बिहेवियर चेंज। आपने जो है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करानी है, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रूल आउट एनी सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड ऑल्सो टू प्रमोट बिहेवियर चेंज ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है। तो उनका जो लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए या उनका हेल्थ से रिलेटेड एटीट्यूड चेंज करने के लिए या उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए जो है उसको CHO को कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कराना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, वो जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, दैट विल बी जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है, सेफ पोर्टेबल वाटर, सैनिटेशन, सेफ कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ और वेस्ट, इंडोर एयर पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स। तो these can be the social or environmental determinants of health. So इन चीज़ों से रिलेटेड वो जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करा सकती है, ठीक है। जैसे कि सैनिटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो एक पर्टिकुलर डे जो है होता है उसमें सबको एंगेज करें कि आज ये हाँ पूरे जो है विलेज की साफ़ सफाई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो एंगेज कर सकती है कम्युनिटी को। उसके बाद है टेक लीड इन प्लानिंग एंड कंडक्टिंग मंथली हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। she or he will lead the planning and conducting monthly health promotion activities. कोई भी इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ या कैंपेन अगर उसको चलाना है मंथली, तो उसमें वो लीडर होगी उसकी प्लानिंग के लिए और उसके कंडक्टिंग के लिए, ठीक है, ताकि लोगों का सोशल और बिहेवियर चेंज किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ या कैंपेन के? सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, रिहैबिलिटेशन, सब्सटेंस अब्यूज़, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ईटिंग राइट एंड ईटिंग सेफ, कंट्रोल ऑफ क्रॉनिक, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस एंड फैमिली प्लानिंग एट्सेट्रा। Then disease surveillance. CHO's role is to coordinate and lead local response to disease outbreaks, emergencies and disaster situations and support the medical team or joint investigation team for disease outbreak. जब भी कोई disease outbreak होता है या कोई एपिडेमिक होता है या कोई डिज़ास्टर होता है या कोई इमरजेंसी हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी होती है, उस टाइम पे अलग अलग लेवल पे जो है हेल्थ रेस्पॉन्स होता है, हेल्थ रेस्पॉन्स टीम काम करती हैं। तो जो लोकल लेवल पे काम करती है दैट इज़ लोकल रेस्पॉन्स कहा जाता है उसको। तो वो एक जो लोकल रेस्पॉन्स टीम है, ठीक है, ये जो
उसको कोऑर्डिनेट और लीड करेगी। लोकल रिस्पांस होता है सब सेंटर लेवल पे, पीएचसी लेवल पे, और एक होता है हमारा फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, फिर होता है हमारा स्टेट लेवल पे, और फिर होता है हमारा सेंट्रल लेवल पे। तो जो लोकल लेवल पे अगर कोई भी एपिडेमिक या कोई आउटब्रेक या डिज़ास्टर या कोई इमरजेंसी हुई है तो उसको कोऑर्डिनेट करने का काम सीएचओ का है। शी और ही विल आल्सो लीड द लोकल रिस्पांस, क्या काम करना है इसको टैकल करने के लिए। एंड शी और ही विल आल्सो सपोर्ट द मेडिकल टीम और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। जब भी कोई आउटब्रेक होता है तो उसके लिए आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनती हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि आउटब्रेक क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ठीक है, कैसे इसको अब जो है टैकल किया जा सकता है, तो उसको वो सपोर्ट करेगी, क्योंकि लोकल लेवल पे वही काम करती है, उसको ज़्यादा अच्छे से पता है अपने लोकल एरिया का। उसके बाद है कॉमनली सीन आउटब्रेक्स आर मीजल्स, कॉलेरा, मलेरिया, फूड पॉइजनिंग, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। और भी हो सकते हैं लेकिन दीज आर कॉमनली सीन आउटब्रेक्स। देन स्टेप्स टू बी टेकन इन इन्वेस्टिगेटिंग एन आउटब्रेक। अभी आपका एक टॉपिक और पढ़ाया जाएगा, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। उसके भी स्टेप्स ये होते हैं कि सबसे पहले तो आप कंडीशन का डायग्नोसिस बनाओगे, ठीक है, कि पर्टिकुलर डिसऑर्डर या पर्टिकुलर इन्फेक्शन या पर्टिकुलर डिजीज़ ये सही है या नहीं है, ठीक है। ये असर्टेन करोगे कि ये डायग्नोसिस पर्टिकुलर कंडीशन का ठीक है या नहीं है। देन वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एपिडेमिक और आउटब्रेक। आप उसके बाद ये वेरीफाई करोगे या ये कंफर्म करोगे दैट जो भी जितने भी केसेस आए हैं उसको हम एपिडेमिक बोलेंगे या नहीं, या उसको आउटब्रेक बोलेंगे या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 या 2 या 3 या 4 या 5 लोग अगर किसी सेम प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम के आए हैं तो हम उसे एपिडेमिक या आउटब्रेक नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जो केसेस का नंबर मोर देन एक्सपेक्टेड नंबर है, ठीक है, अगर हायर है एक्सपेक्टेड लेवल से तो आपको इन्फॉर्म करना है अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को। अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ में भी मेडिकल ऑफिसर ऑफ पीएचसी, ठीक है, जिसके अंडर वो सब सेंटर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आता है, तो वहाँ के एमओ को आपने जो है इन्फॉर्म करना है। देन यू विल सर्च फॉर केसेस एंड लिस्टिंग। अपने जो लोकल एरिया के जो जितने भी उस कंफर्म हो गया आपकी ये एपिडेमिक है या आउटब्रेक है, तो आपने सर्च करने हैं कि वहाँ पे लोकल एरिया में कितने केसेस हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। देन पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल एक्टिविटी विच इज़ इनिशिएटेड बाय पीएचसी और अदर हेल्थ स्टाफ, ठीक है। जो भी पीएचसी जिस पीएचसी के अंडर वो सब सेंटर आ रहा है तो उस पीएचसी और वहाँ के जो हेल्थ स्टाफ हैं उनके साथ कंट्रोल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। देन मैनेजेरियल फंक्शंस। थर्डली मैनेजेरियल फंक्शंस में क्या क्या काम होगा एक सीएचओ का। एज अ टीम लीडर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस टीम, सीएचओ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरटेकिंग मैनेजेरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज आर, सबसे पहले उसका काम होगा कोई भी जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जो सर्विस डिलीवर की जा रही है उसकी रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग करना। सेकेंड, अंडरटेक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। जितने भी वहाँ पे सब सेंटर लेवल पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो रहे हैं, ही और शी विल बी द ऑथराइज्ड पर्सन फॉर दैट, ठीक है। थर्ड, जो भी सपोर्टिव स्टाफ है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का या सब सेंटर का की टीम का, उसका सुपरविज़न करना। तो 3 काम है, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सर्विस डिलीवरी। सेकेंड, अंडरटेक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। एंड थर्डली, सपोर्टिव सुपरविज़न ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टीम, ठीक है। उनको सपोर्ट करना, उनको सुपरवाइज़ करना, ये काम है सीएचओ का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। फर्स्ट वन था हमारा रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सर्विस डिलीवरी।
देन इसमें क्या करेगा जो CHO होगा या होगी, he or she will support MPWs multipurpose workers in maintaining updated information for all subcenter level reporting formats under various national health programs। जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें उनके जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स होते हैं, सब सेंटर लेवल के अलग फॉर्मेट होते हैं, PHC लेवल पे अलग फॉर्मेट्स होते हैं रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग होते हैं, CHC लेवल पे अलग होते हैं, ठीक है। तो जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के सब सेंटर लेवल के रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स हैं उनमें क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है वो मल्टीपर्पज़ वर्कर को इसमें सपोर्ट करेगी या हेल्प करेगी कि ये किस तरह से फिल करना है, ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन अपडेशन जो भी आई है वो मेंटेन करनी है उसमें रिकॉर्ड्स में। देन मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, OPD नंबर्स, इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। जो सब सेंटर है या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पे जो सर्विसेज दी जा रही हैं उनके जैसे कितनी OPDs हुई, ठीक है, OPDs में कितने पेशेंट्स आए एक पर्टिकुलर डे में, पर्टिकुलर वीक में, ठीक है, वीकली कितने पेशेंट आए, डेली कितने पेशेंट आ रहे हैं और किस डिजीज़ से के रिलेटेड पेशेंट ज़्यादा हैं, तो ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना। इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी हो रही हैं वहाँ पे कंडक्ट की जा रही हैं, लैब इन्वेस्टिगेशंस, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना और कौन कौन सी सर्विसेज दी जा रही हैं उस पर्टिकुलर सब सेंटर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। उसके बाद मेंटेन पेशेंट रिकॉर्ड्स, फैमिली हेल्थ फोल्डर्स, हेल्थ रिस्क असेसमेंट डेटा। अब जब आप ये ऊपर वाला डेटा मेंटेन करोगे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के में कितने पेशेंट आ रहे हैं डेली, कौन सी डिज़ीज़ के पेशेंट आ रहे हैं, तो आपको हेल्थ रिस्क असेसमेंट डेटा भी मिल जाएगा कि मान लीजिए वहाँ ज़्यादातर लोग जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड आ रहे हैं या ज़्यादातर जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ से आ रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हेल्थ रिस्क असेसमेंट क्या है वहाँ का, ठीक है, हेल्थ रिस्क वहाँ की पर्टिकुलर कम्युनिटी का हेल्थ रिस्क क्या है, ठीक है। तो उसके बाद ट्रीटमेंट डिटेल को भी जो है मेंटेन करना है फॉर एनरोल पेशेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं पेशेंट, उनका जो ट्रीटमेंट डिटेल है वो भी मेंटेन करके रखनी है उसका रिकॉर्ड। देन एंश्योर एक्यूरेट एंड टाइमली अपडेशन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जितने भी हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हुए हैं वो उनको एक्यूरेट और टाइमली उनका अपडेशन करना है। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन नई आती है, वो जितने भी ऐड ऑन होते हैं, कुछ भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, वो उसमें अपडेट करते रहना है उसको, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS, देन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल हो गया आपका, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एप्लीकेशन हो गई आपकी, और निक्षय हो गया। निक्षय इज़ पोर्टल फॉर TB पेशेंट, उनको ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ये पोर्टल। निक्षय इज़ मेड ऑफ 2 हिंदी वर्ड्स, नी प्लस क्षय। नी मीन्स eradicate and kshay means tuberculosis, so eradication of tuberculosis that combines nikshay. Then submit monthly performance report for the health and wellness centers to PHCMO। जो सब सेंटर की जो मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो उसे सबमिट करनी है, जिस भी PHC के अंडर वो सब सेंटर या वह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आता है उसके मेडिकल ऑफिसर को सबमिट करनी है। देन अंडरटेक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। उसके क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होंगे, CHO जो होगा, ही और शी विल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एट सब सेंटर लेवल और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसमें आपका आएंगे असेस अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, रिएजेंट्स एंड कंज्यूमेबल्स। देन टाइमली इंडेंटिंग टू मेंटेन एडिक्वेट स्टॉक, ठीक है, उसको टाइमली जो है इंडेंट कराना है ताकि उस वहाँ के स्टॉक जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद है
display the list of essential medicine and diagnostic services that will be available at health and wellness center will be provided by state NHM. जो भी स्टेट NHM नेशनल हेल्थ मिशन ने जो भी लिस्ट दी हुई है एसेंशियल मेडिसिन की और डायग्नोस्टिक सर्विसेज की जो उस हेल्थ और वेलनेस सेंटर पे अवेलेबल हैं, वो लिस्ट को आपने डिस्प्ले करना है। उसके बाद है ensure proper upkeep and maintenance of equipment, furniture etc. at health and wellness centers. इंश्योर करना है कि जो सब सेंटर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पे सारे जो असेंशियल इक्विपमेंट या फर्नीचर है वो उनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखना है और वो ठीक ठाक रहें, अपकीप एंड मेंटेनेंस का ध्यान रखना है। उसके बाद है सपोर्ट इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फंड इन कंसेंसस विद ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? किसी भी पर्टिकुलर हेल्थ सेंटर या पर्टिकुलर हॉस्पिटल के स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं? पेशेंट हो गए, फिजिशियन हो गए, सपोर्टिव स्टाफ हो गया, ठीक है, उसके बाद IT स्टाफ हो गया, ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ का ऑनर हो गया, जिनके ऊपर जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जितना भी फंड यूटिलाइज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो वो सारे होते हैं स्टेक होल्डर। तो उस पर्टिकुलर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या सब सेंटर का जो फंड है वो सही स्टेक होल्डर्स वो सारे स्टेक होल्डर्स सही से यूटिलाइज़ करें, इस चीज़ को इंश्योर करना है, इस चीज़ को सपोर्ट करना है, ठीक है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सब सेंटर फंड या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये चीज़ भी जो इंश्योर करने का काम है ये CHO का होगा। थर्ड जो आपका मैनेजरियल फंक्शन में आता है दैट इज़ सपोर्टिव सुपरविज़न ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टीम। तो टीम में कौन कौन आएंगे CHO के अलावा? ANM, आशा वर्कर्स, MPWs, ठीक है, ये सब आएंगे। तो MPWs और आशाज की जो है मंथली मीटिंग जो है वो कंडक्ट करनी है। उस मीटिंग में एक तो असेस करना है कि भाई बेनिफिशरीज़ जो है कितनी कवर हुई हैं, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट असेस करनी है, ठीक है। जो बेनिफिशरीज़ हैं, बेनिफिशरीज़ कौन से होते हैं? जो बेनिफिट ले रहे हैं हेल्थ केयर सर्विसेज का वो बेनिफिशरीज़ हो गए। तो कवरेज ऑफ बेनिफिशरीज़ बाय आशाज एंड MPWs, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेनी है। देन आइडेंटिफाई करना है या एड्रेस करना है अगर कोई गैप रह गया है कि वहाँ कोई रिमोट एरियाज़ है, वहाँ पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो ये चीज़ रूल आउट करनी है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो बेनिफिशरीज़ का कवरेज नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये इशू आइडेंटिफाई करना और कोई भी गैप है जो वो एड्रेस करना। देन डिस्कस कॉमन इश्यूज़ बीइंग फेस्ड बाय आशाज एंड MPWs, जो आपके अंडर आशा और MPWs हैं वो अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कॉमन इश्यूज़ फेस कर रहे हैं वो डिस्कस करना। देन अगर कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा इशू है जो कि PHC के मेडिकल ऑफिसर को पता होना चाहिए तो उसको जो है इन्फॉर्म करना, ठीक है। ये भी काम जो है CHO का होता है। उसके बाद कंडक्टिंग विजिट्स टू बेनिफिशरी हाउस होल्ड्स टू मोटिवेट फैमिलीज़ टू अडॉप्ट हेल्दी बिहेवियर। अगर आपको लगता है कि कोई जैसे किसी आशा या MPW ने आपको बताया कि पर्टिकुलर जो फैमिली है वो कॉपरेट नहीं कर रही है या उनका जो बिहेवियर है हेल्थ को लेके या हेल्थ एटीट्यूड है दैट इज़ नॉट फाइन, दैट इज़ नॉट पॉजिटिव, तो आपको उसको उनमें बिहेवियर चेंज लाने के लिए आप विज़िट्स कंडक्ट कर सकते हैं, होम विज़िट्स कंडक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फैमिली में, ताकि आप मोटिवेट कर सकें उस फैमिली को टू अडॉप्ट हेल्दी बिहेवियर, टू यूटिलाइज सर्विसेज एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड ऑल्सो टू एंश्योर ट्रीटमेंट कंप्लायंस, कि वो जो मेडिकल एडवाइजेज़ हैं वो सही से फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद है मॉनिटरिंग द कंडक्शन ऑफ कम्युनिटी और विलेज लेवल मीटिंग सच एज विलेज हेल्थ एंड हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट
और विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन कमेटी, ठीक है। इस लेवल पे जो है आपने कम्युनिटी या विलेज लेवल पे मीटिंग्स जो हैं वो कंडक्ट करानी है, किससे रिलेटेड, हेल्थ एंड सैनिटेशन और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है। उस अंडर वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें कि आपके न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स आ सकते हैं, आपके जो है सैनिटेशन से रिलेटेड पर्टिकुलर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ से रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ से वाले जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो उसको मॉनिटर करना कि उसका जो विलेज या कम्युनिटी लेवल पे जो मीटिंग्स हैं वो कंडक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और वो कंडक्ट कराना। उसके बाद है फैसिलिटेट मल्टी सेक्टोरल कनेक्शन फॉर एक्शन ऑन सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन एक्टिविटीज़। मल्टी सेक्टर्स की हेल्प लेना, उनको कनेक्ट करना, ताकि जो सोशल डिटर्मिनेंट्स है हेल्थ के या हेल्थ प्रमोशन या प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ के, उस चीज़ उनको वो फैसिलिटेट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है मीडिया सेक्टर, इंफॉर्मेशन जो सेक्टर होता है आपका, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर जो हो गया, उनकी हेल्प ले सकते हैं एडवर्टीज़मेंट्स के लिए, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हेल्प ले सकते हैं, या आप पर्टिकुलर जैसे न्यूज़पेपर एजेंसी की हेल्प ले लिया आपने, पैम्फलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करा दिए, या फिर आपने होर्डिंग्स लगा दिए बड़े बड़े, ठीक है, किसी प्राइवेट जो है कंपनी को के साथ जो है कनेक्ट होके। उसके बाद है जैसे कि आपने पर्टिकुलर जो है एजुकेशन सिस्टम की आप हेल्प ले सकते हैं, ताकि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स में जो है बच्चों को सैनिटेशन से रिलेटेड, या जो एक बेसिक टॉपिक्स होते हैं, पर्सनल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इनसे रिलेटेड जो हेल्थ एजुकेशन है वो स्कूल में ही दी जा सके। तो आप एजुकेशन सिस्टम की या एजुकेशन सेक्टर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस चीज़ को फैसिलिटेट करना CHO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन अदर फंक्शंस क्या हैं CHO के? वर्क प्लानिंग, आपने बेनिफिशरीज कैलकुलेट करने हैं कि आपकी पर्टिकुलर जो सब सेंटर है उसका जो कैचमेंट एरिया, जो जिनको वो सर्व कर रहे हैं, आपका सब सेंटर जिस पॉपुलेशन को सर्व कर रहा है, जिस कम्युनिटी को, जिस एरिया को सर्व कर रहा है, वहाँ कितने बेनिफिशरीज हैं, उसके हिसाब से आपने वर्क प्लान बनाना है कि जो है कितने MPWs के कितनी पॉपुलेशन को कवर करेंगे, कितनी फैमिलीज़ के पास जाएंगे, ठीक है, उस हिसाब से आपने वर्क प्लान बनाना है। देन कोऑर्डिनेशन विद वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एंड कम्युनिटी, जो अलग अलग जो लेवल है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है और कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेट करना है। सोशल मोबिलाइजेशन एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ठीक है, इसमें ये भी जो है काम CHO का होता है। देन नीड बेस्ड ट्रेनिंग फॉर हेल्थ एंड वेलनेस केयर सेंटर टीम, जो आपके अंडर जो भी जो भी आशा वर्कर्स और MPWs होंगे, उनकी नीड बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो कराना, ये भी काम CHO का है। सो टू कंक्लूड द टॉपिक, द CHO or community health officer of the ensures that all the comprehensive primary health care services will be provided to population falling under the service area of sub health center, health and wellness centers, thus enabling a network of health and wellness centers to deliver comprehensive primary health care services, ठीक है। तो ये इंश्योर करने का काम है कि भाई जितनी भी पॉपुलेशन उसके अंडर आ रही है वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें, तो उसी तरीके से एक नेटवर्क बनाने का काम जो है CHO का होता है, ताकि जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा सकें उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर पॉपुलेशन को। So this is all about the topic role and responsibilities of mid-level healthcare provider, or you can say CHO, community health officers. This is very important topic. Please go through it and let me know if any doubt or query. Thank you so much.